Yes, students, let's start with. During last lecture, I have discussed these 3 or 4 points with you. Controlling process. Though it is the last function of our management team, but it is very, very important because it is the controlling which will lead you to success in the next year's plan. Unless and until you will not be checking your performance of your employees, how can you set a standard for the next year? So better is you have to keep a check over the performance of your employees. Then only you will be able to plan for the next year. Controlling of last year always becomes the base for the next year planning. Next year planning means you have to set the objectives. So first you will see whether we were able to achieve our objectives or no. So this might be Diksha. She will be reminding me about mine. Yes, students, let me continue with. I'm repeating again the same line. Controlling process is the last function of the management whereby we just check whether we have achieved the standard set or not. Whatever we set in our planning, now the time has come to check whether we achieved that goals or not. If you will not be engaging yourself in controlling process, you will not be sure about the exactness of goals for the next year. It means कि next year की planning के लिए आपको last year की controlling को base बनाना ही पड़ेगा. Though the controlling we always call it a postmortem of the events done. जो इवेंट्स हो चुके हैं, जो टास्क हो चुकी हैं, जो परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं, आपने सिर्फ उसे क्या करना है, चेक. लेकिन जब तक चेकिंग नहीं होगी, ह्यूमन साइकोलॉजी है, दे विल बिकम लेथार्जिक, दे विल बिकम केयरलेस. We just want to check over them. So that's why they should feel fear. Any time their work can be checked. Surprise checking can be there. For that purpose, controlling should always be involved in your management process to complete it. Management process को complete करने के लिए you have to involve the controlling in that way. When we were talking about the steps in the controlling process, these 4 steps I think I have discussed with you. I'm just repeating it. Setting performance standards. So this is same as of setting of objectives. Means you have to tell your employees what actually you want from them to achieve. So many examples he has given, like for production department, it can be the quality, it can be the quantity standard. Okay? For marketing manager, it can be the sale promotion to increase the sale. For human resource department, the standards can be the good labor relations with the management. They should not go for strike, they should not protest, etc. So always the good or better relations should be there between employer and employee. So these can be the standards. Standards can be numerically defined, then it will be called quantitative standards, and few of the standards that are not able to be measured or not able to be converted into your numerical terms, that standards are qualitative standards, and few things are being related with qualitative standards, and that all you have to dictate. That is what setting performance standards. Then this was the task being done by the management. Now the work of middle management will come, whereby they will measure the actual performance of their team members. And who will tell them to measure that performance? Definitely top management will ask the performance reports from your middle management. So whenever they are giving them ranking, they are making their performance reports to be submitted to the top management. Then ये question आया होगा, at that time which function of the controlling, which step of the controlling is being done by our middle management? Then your answer will be second step of controlling process, which we call measurement of actual performance when they are making their performance reports. Then comparison. It is very, very important step. Why important? Let me tell you. Your performance standards may be high and actual performance may be low. In that way, you just need to compare and you just want to see कि कहाँ पे difference है. And whenever differences lies, you need to worry. And in that case, you have to see whether the difference is positive or negative. When it will be positive, when standards are low and actual performance is more positive, no need to worry. ठीक है, मीन्स आपके कहने से ज्यादा उन्होंने क्या बना दिए, यूनिट प्रोड्यूस कर दिए. मीन्स उनका प्रोडक्शन लेवल स्टैंडर्ड लेवल से भी क्या था, ज्यादा था. When the tension will create, when your actual performance is quite lower than your standard set, in that case you need to worry. Management will come into scene and management will interfere in between, and management will ask the causes or the reasons why they were not able to achieve whatever they being told to achieve. So जो हम लोगों ने उन्हें बोला था वो अचीव क्यों नहीं हो पाया, we will be finding the reasons for it. This is what we call analyzing deviations.
और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही वाज टॉकिंग अबाउट two main techniques which the management will use. That is under 4 step we have two separate questions. 3 marks में वो question बनते हैं. And one thing more I wanted to discuss with you, if you will be analyzing a few years back question paper when the case studies were being introduced in the exam, we were having the 5 mark questions also in the paper, but now from this year 5 mark questions have been deleted. He just increased 3 marks question and 6 marks के पहले 3 ही हुआ करते थे, उसने वो क्या कर दिए 4 in number. 5 mark का कोई भी क्वेश्चन नहीं है. तो अभी हमारे पेपर का क्राइटेरिया क्या है, 20 marks के क्वेश्चन 1 mark के हैं. Then we have 3 marks question, 4 marks question, 5 नहीं है 6 marks. ठीक है, तो जो मैक्सिमम लेंथी क्वेश्चन आएगा वो 6 marks का है. But when I was discussing about this analyzing of deviations, we have two separate techniques. Management will use two techniques to analyze the deviations. That also I think I discussed with you. CPC, critical point control. What is the meaning of critical point control here? Important points are only to be stressed upon. Routine के matter आपने किस पे छोड़ देने हैं, अपनी टीम पे. मींस हमारी टॉप मैनेजमेंट को सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर क्या देना है, स्ट्रेस देना है. बाकी रूटीन के मैटर्स के बारे में उसे कोई भी बॉडरेशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट इज नॉट फ्री टू डील विद द रूटीन मैटर्स. फॉर दैट पर्पस ही इज यूजिंग अ टर्म. इसके बारे में भी एक बार क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय KRAs? दिस इज की रिजल्ट एरियाज. Key result areas are those areas which can affect my overall organization. I can't ignore it at all. For example, let me elaborate it. For example, you are planning to open a new branch. और आप ऐसे एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना, उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन लेना, उस डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी से परमिशन लेना was essential. But without taking that permission, you started the construction. So it is going to be a flop show, na? They will come with the machine and they will just destroy that construction work. तो आपका सारा पैसा वहां पे क्या है, वेस्ट है. हो सकता है वो उस लैंड को ही सीज कर जाए. इन दैट केस क्रिटिकल और पॉइंट क्या था, सबसे पहले उस मैप को आर्किटेक्ट से पास करवाओ और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से क्या लो, परमिशन बिफोर कंस्ट्रक्शन. दैट वाज की रिजल्ट एरिया व्हिच यू कांट अफोर्ड टू इग्नोर. ये वो एरियाज हैं जिन्हें आप इग्नोर करना अफोर्ड ही नहीं करते हो. वंस यू जस्ट स्किप्ड दैट एरियाज, यू स्किप्ड और इग्नोर्ड दैट एरियाज, यू आर गोइंग टू सफर अ लॉट. तो बेटर है कि उस सफरिंग को अवॉइड करने के लिए आपने इनके ऊपर कंट्रोल जरूर रखना है. एंड दैट इज अ मैटर ऑफ मैनेजमेंट. भाई किसी भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले परमिशन लेना, उसका मैप आर्किटेक्ट से प्रिपेयर करवाना आपको पहला फॉरमोस्ट स्टेप है. प्रायोरिटी वाइज ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि इससे पहले आप बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, लेबर अरेंज कर लो और कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दो. नो, you have to take the beforehand permission before starting the production. So whatever example he has given, that also I discussed with you beforehand. That is in manufacturing organization, अगर 5% से आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, वो ज्यादा आपके लिए ट्रबलसम है कंपैरिजन टू 15% इंक्रीज इन पोस्टेज एक्सपेंसेस या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, बिकॉज दैट आर वेरी माइनर इन नंबर, दैट आर वेरी मिनिमल. ठीक है, पोस्टेज और स्टेशनरी पे कितना खर्चा होता है, 15-20% से बढ़ जाएगी, वी कैन इग्नोर. लेकिन लेबर कॉस्ट इज माय मेजर ओवरहेड एक्सपेंस. इफ दैट इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 2% और 5%, then definitely this is a matter to be considered, right? So that is what we call key results area, critical point control. और इसकी टैगलाइन बच्चे आपने याद करनी है. It is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity in an organization. ठीक है, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारी चीजों को कंट्रोल करो. You can't make your organization an airtight container. तो आपने किनके ऊपर फिर सिर्फ फोकस करना है, ओनली ऑन की रिजल्ट एरियाज. वंस की रिजल्ट एरिया आर बीइंग कंट्रोल्ड वेल, योर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन योर कंट्रोल. आपके फुल कंट्रोल में रहेगी अगर आपके मेन एरिया से क्या हो गए, कंट्रोल हो गए. देन आई डिस्कस विद यू अंडर दिस एनालाइजिंग डेविएशन, दैट इज MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मैनेजमेंट को फिर से वही रिपीट करती हूं मैं लाइन, मैनेजमेंट को हर बात पे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है. वो प्रॉपर्ली डिसेंट्रलाइज कर दो, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें अपने पास रखो. एक्सेप्शनल केसेस में ही मैनेजमेंट विल कम इनटू सीन और बाकी सारे काम वो अपने जूनियर्स और मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट से करवाएगी. दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. इसके बारे में भी आपको एक लाइन याद रखनी है, एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग. ठीक है, सो व्हेनेवर द मैनेजमेंट wants to control everything, रिजल्ट क्या होगा, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि हर चीज आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगी और आपके टीम मेंबर्स और सबऑर्डिनेट्स को लगेगा ये तो बिना मतलब पे हमारे ऊपर रोब झालते रहते हैं या हमें इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं. देयर इज नो फन ऑफ दैट.
तो अगर मैनेजमेंट का डर ही हमारे सबऑर्डिनेट्स के मन से खत्म हो गया, देन व्हाट इज द फन ऑफ टू कंट्रोल देम। बेटर है कि आप कभी कभी उनका कोई सरप्राइज चेकिंग करो, कभी कभार साल में एक बार किसी टीम मेंबर को बुला लो अपने ऑफिस में, सो दैट अ फियर कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, इतना ज्यादा टेरर भी ना हो, लेकिन एक फियर हमारे एम्प्लॉइज के मन में जरूर रहना चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट कभी भी हमें बुला सकती है, कभी भी हमारी इंक्वायरी हो सकती है, कभी भी हमारे से क्वेश्चनिंग हो सकती है। सो दिस शुड बी द क्राइटेरिया व्हिच वी कॉल MBE, राइट। Then we arrived at the last step, that is taking corrective action. You analyze the deviations, you got the result कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या जैसा हमने बोला था काम वैसा ही हो रहा है, then it's fine। ठीक है, और एक लिमिट तक अगर डेविएशंस है we can accept। 1% से लेबर कॉस्ट बढ़ गई, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है। 5%, 7% से बढ़ती है, it can't be accepted। In that case, you need to worry, you need to sit together, you have to take the corrective measures, otherwise it will be too late। अगर आप टाइम रहते गलतियों को नहीं सुधारोगे तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर वो गलतियां रिपीट होती रहेंगी एंड इट विल बिकम अ बर्डन ऑन यू। तो बेटर है कि आपको उन गलतियों को पहले तो ढूंढना है, फिर उसको सुधारने के लिए यू हैव टू टेक द स्टेप्स व्हिच वी कॉल टेकिंग करेक्टिव एक्शन एट द राइट टाइम। Corrective actions are always to be taken at the right time. It should never be delayed. You will not be lingering on them. ठीक है, इनको लिंगर ऑन नहीं करना, इनको पेंडिंग नहीं रखना, राइट टाइम पे आपने करेक्टिव एक्शन जरूर लेने हैं। सो वट एवर ही इज राइटिंग, लेट मी रीड। द फाइनल स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन डेविएशंस आर विदिन लिमिट्स, and whenever our deviations are crossing the limits, in that case you need to take the corrective action। so you just have decided a range, acceptable range of deviations, ये उस दिन भी हमने डिस्कस किया था। so this range may vary from concern to concern, like मेरे एक सोल प्रोप्राइटर के लिए 10 रुपए का भी खर्चा ज्यादा हो जाए तो he will be worrying कि 10 रुपए मेरे पास आ नहीं रहा, रिकॉर्ड मैंने डायरी में नोट नहीं करा, पता नहीं ज्यादा कहाँ पे खर्च हो गया, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। लेकिन मैं बार बार हाई बिजनेस टाइकून्स की एग्जांपल लेती हूँ, टाटा बिरलास की, उनके लिए लाखों भी अगर इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो एक्सेप्टेबल रेंज, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेंज, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, किसी के लिए 1 रुपया 10 रुपए भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कईयों के लिए लाखों का भी अगर पैसा इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग। अब करेक्टिव एक्शन क्या हो सकते हैं, लाइक आपकी प्रोडक्शन टाइम पे नहीं हुई, इट मींस कि योर एम्प्लॉइज वर नॉट ट्रेन्ड वेल। तो करेक्टिव एक्शन में क्या हो सकता है, आप एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दोगे अगर टारगेट अचीव नहीं कर पाए वो पहले। सिमिलरली इफ एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, टाइम पे आपने कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया था, वो टाइम पे फुलफिल नहीं हुआ, आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ बिल्डर, आपने डैम या रोड बनाने का कोई प्रोजेक्ट लिया था, वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, इट गॉट डिलेड। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द करेक्टिव एक्शन, या तो ओवरनाइट करवाओ काम, ठीक है, या ज्यादा वर्कर्स अपॉइंट करो, मटेरियल ज्यादा लेके आओ ताकि आपका काम जल्दी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। सो दिस कैन बी द करेक्टिव स्टेप्स इन डिफरेंट केसेस। देन वी हैव अ टेबल वेयर बाय ही हैज गिवन कि अगर डेविएशन इस नेचर की है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या होगा। लाइक कॉज ऑफ डेविएशन है डिफेक्टिव मटेरियल, सप्लायर चेंज कर दो ना, मतलब रॉ मटेरियल ही घटिया किस्म का आया जिसके कारण हमारा अच्छी क्वालिटी का सामान ही नहीं बन पाया, तो व्हाट विल बी योर करेक्टिव एक्शन। या तो सप्लायर, अपने प्रेजेंट सप्लायर को वार्निंग दे दो कि हमें अच्छी किस्म का ही सामान चाहिए, या सप्लायर चेंज कर दो। देखो क्या लिखा उसने, चेंज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फॉर द मटेरियल यूज। मेरी वाली दोनों ऑप्शन भी ठीक है। इफ यू आर गेटिंग द डिफेक्टिव मटेरियल तो आप अपने सप्लायर को स्पेसिफाई करो ना कि हमें कैसा सामान चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं बात मानता तो सप्लायर चेंज कर दो, फाइंड अ न्यू सप्लायर। ठीक है, मेक अ न्यू एग्रीमेंट विद अ न्यू सप्लायर, देन डेफिनेटली क्वालिटी कैन बी इंप्रूव। डिफेक्टिव मशीनरी, मशीन खराब हो गई है, चलते चलते बहुत बार रुक जाती है, नहीं खरीद लो, रिप्लेसमेंट कर लो या उसकी रिपेयर करवा लो। ठीक, देखो उसने क्या लिखा, रिपेयर द एक्जिस्टिंग मशीन और रिप्लेस द मशीन। मैंने भी यही बोला, अगर उसकी रिपेयर, कई बार क्या होता है लाइफ ही खत्म हो गई, लाइफ हैज बीन एग्जॉस्टेड, रिपेयर पे इतना खर्चा कर चुके हैं फिर भी इट्स नॉट इंप्रूविंग इन इट्स फंक्शनिंग, देन बेटर टू रिप्लेस इट विद न्यू वन। ऑब्सोलीट मशीनरी, तो यहाँ पे तो रिप्लेसमेंट ही है ना, आउट ऑफ डेट हो गई भाई, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, देन बाय अ सोफिस्टिकेटेड एंड द न्यू मशीन which will be upgraded in technology. Defective process, which process he might be talking about, production process। प्रोडक्शन प्रोसेस में आमतौर पे हमारा डिले ही हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में आप उसके स्टेप्स को सिंप्लीफाई करो, ठीक है, या दोबारा से अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो ताकि जो एग्जिस्टिंग वाला प्रोसेस है वो हमारा दोबारा से डिले ना करे। यू हैव टू मेक द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, देन डेफिनेटली प्रोसेस कैन बी इंप्रूव्ड। Defective physical condition of the work, what is the physical condition, there is no proper ventilation। ठीक है,
जहां पे मशीन लगी हुई है वहां पे कोई नॉइस को कंट्रोल करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया, जिसके कारण पूरी ऑर्गेनाइजेशन में नॉइस ही रहता है पूरा दिन, जिसके कारण हमारे वर्कर्स की कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। तो उन फिजिकल कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए यू कैन वर्क अपॉन दैट। आप उनके एयरी रूम्स में बिठाओ, शेड वगैरह प्रॉपर हो, सनलाइट का भी प्रॉपर प्रोविजन हो, तो इन दैट वे यू कैन improve it. So these are the certain examples relating to your deviations, causes of deviations, and what can be the remedial measures to improve it, right? So with this, the chapter is over. Let me read back exercise questions for you.